A very good morning, 7th class. Today we will start our next chapter, and this is media and advertising. And here is given some learning objectives that we will read in this chapter. So first one is what is advertisement, then second one, purpose of advertisement, the next one, how are advertisements prepared, and the types of advertisement, and the next one, advantages of advertisements. Okay, so let's start the chapter. So the students, here is given already some notes, और अब मैं नोट्स के तरीके से आप लोगों को ये चैप्टर रीड कराऊंगी कि इसमें क्या दिया गया है. इन दिस चैप्टर वी वुड स्टडी अबाउट द एडवर्टाइजिंग, इट्स मीनिंग, टाइप्स, ऑब्जेक्टिव्स, मेथड एंड रेगुलेशन. ओके, सो स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, watch an advertisement on a TV and note down its contents. What are they trying to convey to you? सोच के देखो. जितने भी एडवर्टीज़मेंट टीवी पर आते हैं आप उनको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और वो क्या बोलते हैं, क्या कंटेंट होता है उनका, आप इस चीज़ को सुनेंगे, और वो क्यों ऐसे कोशिश कर रहे हैं, ये आप सब चीज़ें नोट करेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, एन एडवर्टीजमेंट और एन एड एज इट इज़ कॉल्ड दीज डेज, आजकल एडवर्टीजमेंट को क्या बोलते हैं, एड बोलते हैं. It is a public announcement in a print media like newspaper and magazine, or electronic media like TV and radio about promotion of a product or a service or an event. So हम कह सकते हैं, thus we can say the advertisement is a means of communication between the buyer and the seller. ओके, जो खरीदने वाला होता है और जो बेचने वाला होता है, ये उनके बीच के कम्युनिकेशन को शो करता है. ओके, एंड इट कम्युनिकेट्स टू द कस्टमर्स अबाउट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज रेंडर्ड बाय अ कंपनी. और इसका मेन एम क्या होगा, टू गेट पीपल टू बाय अ पर्टिकुलर ब्रांड. ओके, अब सबसे पहले हम इसके मीनिंग को समझते हैं कि मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या है. You will also note down. Okay, advertising refers to the promotion of goods, services, companies and ideas through medium, usually by an identified sponsor or agent. Okay, every advertisement seeks to convey a specific message about a thing or an idea. And advertising involves different types of media and a variety of techniques. Newspaper, magazines, radio, television and internet are some of the media that carry various advertisement. आपने देखा होगा, आप न्यूज़पेपर, सबसे पहले मेन बात मीडिया. There is a two type of media. There are the two type of media. First one is print media and the second one is electronic media. और आप print media के साथ साथ electronic media में भी बहुत से advertisement को देखते हैं जहाँ पर बहुत से product के बारे में बताया जाता है. So for a company which is trying to sell a product, advertisement is the quickest and the best way to reach the consumer. And through the advertisement, companies impress and influence the target group to buy the product. Okay, और किसी भी ब्रांड या किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोशन के मेथड्स भी बहुत से बनाती है कंपनीज. और वो क्या क्या है यहाँ पर, स्टेज इन काउंटर्स इन अ पब्लिक प्लेसेस, give aways of products such as cars that are covered with brand messages, interactive promotion where the viewers can respond to become a part of the message. It means कि कंपनीज अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए और उनकी डिमांड को बढ़ाने के लिए बहुत सी पोस्टर्स, बैनर्स और प्ले कार्ड्स और बिली बोर्ड्स ऑन द रोड्स where they can catch the eye of a prospective customer. Okay, students, we watch ads on TV. हम TV पर भी देखते हैं, सिनेमा हॉल्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, फ्लायर्स एंड मेलर्स एक्सेट्रा, बहुत सी चीज़ों पर हम ऐड को देखते हैं. और कभी कभी आपने देखा होगा
They often pop up when we go to our websites on internet. We listen to ads on the radio also. जब भी हम अपनी वेबसाइट पर जाते हैं, इंटरनेट पर जाते हैं और उनको जैसे ही ओपन करते हैं एकदम आपके सामने ऐड आते हैं, या आप कोई भी म्यूज़िक सुनते हैं रेडियो में तो वहाँ पर भी आपको ऐड ज़रूर मिलेंगे। अब बात करेंगे बिल्डिंग ब्रांड्स एंड ब्रांड वैल्यूज़ की। एडवर्टीजमेंट्स आर ऑल अबाउट बिल्डिंग ब्रांड्स। ब्रांडिंग मीन्स गिविंग अ यूनिक नेम, symbol, design or image to a product that identifies and differentiate it from other similar product। ब्रांड भी होती है और it adds a value to it, such as आप एक चीज़ देख सकते हैं, आप अब जब भी ऐड में देखते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर किस चीज़ का ऐड दिखाया गया है, सफोला हार्ट का। और इसमें आप कंटेंट भी देखो और स्टेटमेंट भी देखो और उसको रिप्रेजेंट करने का भी तरीका देखो कि किस प्रकार वो व्यूअर्स को ये चीज़ें सारी दिखाई जाती है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको अट्रैक्ट करे और वो उन चीज़ों को लेने के लिए अपनी डिमांड रखें। सो हियर इज फर्स्ट चॉइस ऑफ मदर्स हु केयर or Saffola heart makes one feel that if you care for the health of your heart, Saffola is the only cooking oil you should use। So student, market is flooded with hundreds of products। बहुत से products होते हैं market में। The manufacturer has to convince the consumer that his product is better than other in the market, and the manufacturer has to give the consumer a reason to prefer his particular brand over the other available in the market। So क्या करते हो, the advertiser claims certain special value for their brand। In this way they try to differentiate it from others। or advertising creates a positive impression for a brand and gives the product a major edge in competing with other products। However, the cost of packaging, branding and advertising makes the product costlier। Now students, हम बात करेंगे now the types of advertisement। Advertisement may be commercial, social and political। The first one is here is given, the commercial advertising। So commercial advertising is done primarily to promote consumer items, product and services। और ये प्रोडक्ट और सर्विसेज में क्या होती है, लाइक सोप्स, शैम्पूज, टूथपेस्ट, आटा, मोबाइल फ़ोन और इवन बैंकिंग। ओके, एंड इट यूजेस अ वैरायटी ऑफ मीडिया फॉर दिस पर्पस। बिलीबोर्ड्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, रेडियो, ब्रॉडकास्ट, सिनेमा, TV channels, bus stop, sides of buses, trains, platforms, the reverse of tickets and receipts and so on। And the students, some advertiser use the service of celebrities like a film star to endorse their products, especially beauty products, and they hold promotional events where the product is launched by a celebrity। Okay, so a food products, cooking oil or toothpaste show doctors or dentists recommending their products as a healthy choice। और इनके अलावा और क्या चीज़ आती है, अपनी चीज़ों को बेचने के लिए बहुत सी चीज़ें को प्रमोट करते हैं, जैसे कि एडवर्टाइज़र यूज़ ऑल पॉसिबल मीन्स लाइक अ कैची स्लोगन और कैची ट्यून टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर। कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सी ऐसी कैची ट्यून लगाते हैं, स्लोगन लगाते हैं अपनी ऐड के बीच में, ताकि कंज्यूमर एंड टू परसुएड हिम टू बाय, ताकि वो उनको राजी कर सकें टू बाय देयर प्रोडक्ट, वो उनके प्रोडक्ट को खरीद पाए। और समटाइम्स क्या करते हैं वो, दे एडवर्टाइज हैवी डिस्काउंट एंड सेल। इन चीज़ों का भी वो लोभ देते हैं कि उनकी चीज़ों को खरीदा जाए। इसका मतलब है जो कमर्शियल एडवर्टाइजिंग होते हैं उनका मेन पर्पस बेटा बेनिफिट के लिए ही होता है, और बेनिफिट कमाए वो अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेचें। अब बेटे सेकेंड टाइप बात आती है सोशल एडवर्टाइजिंग। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। सो सोशल एडवर्टाइजिंग, the advertising techniques used to promote commercial goods and services can also be used to inform
educate and motivate the public about non-commercial issues such as human equality, health, hygiene, energy conservation, deforestation and so on. It means students, जो social message देते हैं, advertisement which carry a social message are called social advertisements, और दे आर रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट. इनको गवर्नमेंट रिलीज करती है इन बोथ प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों. ओके, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सोशल इश्यूज़. और कुछ सोशल इश्यूज़ होते हैं हमारे सोसाइटी में, उन सोशल इश्यूज़ को के लिए अवेयरनेस जगाने के लिए हमारी स्टेट गवर्नमेंट इनको रिलीज़ करती है. और वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर, एजुकेशन, हेल्थ, गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर द अपलिफ्टिंग ऑफ गर्ल्स एक्सेट्रा. और कैंपेन्स लाइक स्वच्छ भारत अभियान and polio eradication and immunization drives, respect for female child, pollution free environment are the example of social message, but across through advertisements. Okay, so such advertising is called social or public service advertising. Social institutions include religious or voluntary organization use advertising to communicate certain message to the पब्लिक. ये क्या करते हैं, कुछ सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं और उनमें कुछ इंक्लूडिंग होते हैं रिलीजियस और वॉलंटरी का मतलब है जो बिना किसी प्रॉफिट के या सैलरी के लोगों को अवेयर करते हैं और उनके पास अपनी फ्री में सर्विस पहुंचाते हैं, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन उनको देते हैं. नाउ दीज में इंक्लूड्स मैसेजेस ऑफ फेथ, कंपैशन एंड सर्विस, चैरिटी टुवर्ड्स द नीडी, health, education, patriotism and tolerance and so on. ये बहुत सारे मैसेजेस इसमें इंक्लूड होते हैं. एंड थ्रू कंस्ट्रक्टिव एंड हेल्पफुल मैसेजेस सोशल एडवर्टाइजिंग अटेम्प्ट्स टू एजुकेट एंड मोटिवेट पीपल. और ये ऐसे एडवर्टाइजमेंट क्या करते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कुछ अच्छा करने के लिए. ओके, नाउ द थर्ड वन, दैट दिस वन इज द पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग, ऑल्सो द थर्ड टाइप ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट. और इसमें क्या है पॉलिटिकल में कि पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट्स मीन्स the advertisement which political parties issue to inform the public about their policies, programs, manifestos and agenda. और इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो अपनी पार्टी से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ होती है, प्रोग्राम होते हैं, जो उनके एजेंडा होता है, मैनिफेस्टो होता है उनकी पार्टी के, वो सारी की सारी इसमें ऐड के द्वारा लोगों को बताया जाता है. और ड्यूरिंग इलेक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज़ मेक कट आउट ऑफ देयर लीडर्स, और अपने लीडर्स जो उनके लीडर्स हैं और कौन उनकी पार्टी से उठते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इन ऐड के द्वारा बताई जाती हैं. और डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं पैम्फलेट्स अबाउट देयर मैनिफेस्टो एंड गिव एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर और ऑन टीवी टू हाईलाइट देयर अचीवमेंट एंड टू गेट मोर वोट, ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल करने के लिए. Okay, so political advertising is one of the means by when political parties और उनके candidate and other socially active groups reach out to people, especially during the time of elections. Election जब चल रहे होते हैं उनके दौरान इनके ऐड दिए जाते हैं. आप अपने जहाँ से भी आसपास जब गुजर रहे होते हैं, आप ऑन रोड पर भी और हर जगह इन के ऐड आप देख सकते हैं. ओके, पॉलिटिकल एड्स कम्युनिकेट पॉलिटिकल इश्यूज टू द पब्लिक एंड दीज कैन बी ईदर और अर्ज पीपल टू इलेक्ट अ कैंडिडेट्स इन द इलेक्शंस टू प्रमोट अ सेट ऑफ आइडियाज और पॉलिसीज. ओके, इस तरह से आप ऐड को देख सकते हैं. एंड एडवर्टाइजिंग इन विच अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ प्रोडक्ट्स. और इसके अलावा हम बात कर सकते हैं यहाँ पर कन्वर्ट एडवर्टाइजिंग की. कन्वर्ट एडवर्टाइजिंग में क्या है कि एडवर्टाइजिंग इन विच अ पर्टिकुलर ब्रांड of product is incorporated in a movie or a TV show or a sports event which is very popular and is seen by many people. आप देखते होंगे. On the face of it, it does not look like an advertisement,
but the purpose behind this exercise is to advertise the product. ओके और सम ऑफ द एग्जाम्पल अगर हम बात करें कन्वर्ट एडवर्टाइजिंग की तो वो कौन कौन से हो सकते हैं। आपके जो ये पॉपुलर एक्टर इन अ मूवी शोन ड्राइविंग अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ कार आप देख सकते हैं। ओके और क्रिकेट टीम वियरिंग अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ क्लॉथ्स, टेनिस प्लेयर वियरिंग अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ शूज़ और यूजिंग अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ टेनिस रैकेट। आप देख सकते हैं, आप जब भी सेलिब्रिटी को देखेंगे, आप मूवी को देखते हैं या क्रिकेट मैच को देखते हैं, जैसे आईपीएल हो गया, आपके आईसीसी वर्ल्ड कप हो गया, उसमें आप क्या देखते हैं, क्या नोटिस करते हैं कि ब्रांड की चीज़ों को वो पहने हुए होते हैं, किस ब्रांड को यूज़ कर रहे होते हैं, स्पेशली क्या कर रहे होते हो, उसमें हिडन मीनिंग छिपा हुआ होता है। इट मीन्स वो ऐड दे रहे होते हैं, साथ के साथ अपना परफॉर्म भी करते हैं वो, और साथ के साथ वो ऐड भी एक तरह से बता रहे होते हैं। और टेनिस प्लेयर को के शूज़ को आप कभी देखना, वो ब्रांड शूज़ होते हैं। और एक मूवी में अगर आप देखेंगे तो जो एक्टर और एक्ट्रेस होती हैं और पर्टिकुलर ब्रांड कार उनके पास होती है। ओके और मेन इनका पर्पस क्या होता है इस एडवर्टाइजिंग का, मेक कस्टमर अवेयर ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विस। So objectives of advertising: communicate information about a particular product and services or brand, including announcing the launch of a product, where to purchase it and how to use it। ये सारी की सारी बातें बताई जाती हैं। and persuade people to buy the product। persuade means उनको राजी किया जाता है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। ओके एंड ब्रांड बिल्डिंग ऑल्सो। ब्रांड बिल्डिंग का मतलब है कि इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग इंक्रीज द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एंड द ब्रांड। और ब्रांड उनको इतना इफेक्टिव बनाया जाता है कि लोग वहाँ पर उन चीज़ों को देखें और परसुएड करें टू बाय द प्रोडक्ट, एंड दिस इज कॉल्ड ब्रांड बिल्डिंग। एडिडास ये भी ब्रांड है और आप देख सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन ब्रांड फ्रेंचाइज। वंस द ब्रांड इज वेल एस्टेब्लिश्ड इट enjoys the ability of to draw customers even without further advertising and it is said to have a brand franchise। इसका मतलब है अगर एक बार ब्रांड का नाम फेमस हो जाए और लोग उसको लेना पसंद करें तो बार बार उसके अब ऐड नहीं दिखाए जाते हैं, क्योंकि एक वहाँ पर पर्टिकुलर लोग उसको लेने लग जाते हैं। ओके एंड टेक्निक ऑफ एडवर्टाइजिंग की टेक्निक्स ऑल्सो गिवन हेयर। ये क्या है, रेपिटिशन। सम एडवर्टाइजर सिंपली अटेम्प्ट टू मेक पीपल रिमेंबर टू ब्रांड नेम थ्रू रेपिटिशन। इट मीन्स ये कुछ टेक्निक्स हैं जिसमें बताया गया है कि किस तरह से प्रोडक्ट को की डिमांड बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जाता है। ओके सो हियर इज गिवन सम टर्म्स। द सेकेंड वन इज ऑल्सो, इसमें सेकेंड वन में क्या है, थ्रू अ सजेशंस दैट द प्रोडक्ट इज वाइडली यूज्ड एडवर्टाइजर ट्राई टू कन्विंस बायर टू गेट इन द bandwagon और मिस आउट। द थर्ड वन इज टेस्टिमोनियल्स, और इसमें क्या है कि अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए किससे की जाती है, थ्रू द रिकमेंडेशन और टू एक्चुअल यूजर्स एक्सपर्ट्स और बोथ, उनके जरिए इसको प्रमोट किया जाता है। एंड नेक्स्ट वन अपोल टू इमोशंस में अपील की जाती है। अपील का मतलब है टू इमोशंस इज ऑफन बाय द charitable organizations। appeals to fear and emotions are often used in public service messages and products। next one is pressure। association and advertising slogans, these are the techniques। okay and now the advertising and regulation में क्या है, there is nothing good or bad about advertising as such।
It is a tool that can be used in both ways. While it can give beneficial results, it can also impact individuals and the society negatively. And there have been efforts by the government to protect public interest by regulating the content and the reach of advertising. That is the ban imposed on advertising tobacco and alcohol on the television. इन पर बैन लगाया गया है. Advertising can play an important role in the process of human development, and advertising can brighten up our life simply by being witty, tasteful and entertaining. अगर बेटा हम यहाँ बात करें पर्पज़ ऑफ एडवर्टाइजिंग के पर्पज़ की बात करें तो मेक कस्टमर्स अवेयर ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विस. कस्टमर को अवेयर किया जाता है अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग. अनाउंस न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज. कन्विंस कस्टमर दैट योर कंपनीज प्रोडक्ट और सर्विस इज राइट फॉर देयर नीड्स and create a desire for products or service. Enhance the image of your company. Draw customers to your business and make customer ask for more information, place an order, or remind people about the product and encourage repeat purchase. Okay, and the next one is how are advertisement made. इनको बनाया कैसे जाता है. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ब्रांड है. Okay, and इस images में once any organization decides to improve the sales of any of its new or existing products or service, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि उसको किस तरह से सेल करनी है अपनी प्रोडक्ट की, तो वो क्या करते हैं, इट हायर्स एन एडवर्टाइजिंग कंपनी टू मेक द एडवर्टीजमेंट. और वो कोई भी नया प्रोडक्ट बना है और उस प्रोडक्ट को और डिमांड और ज़्यादा बढ़वानी है तो हायर करती हैं जो जो कि कंपनीज होती हैं जो ऐड बनाती हैं उन कंपनी को वो हायर करती हैं ताकि वो उनके और ज़्यादा उनके प्रोडक्ट को लॉन्च करें. सो इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं स्टूडेंट्स, अब ये देखिए आप कि द एडवर्टाइजिंग जो एड एजेंसी होती है डिसाइड्स ऑन द टारगेट ऑडियंस फॉर द एडवर्टीजमेंट. और वो क्या देखते हैं, एज ग्रुप, इनकम ग्रुप और पर्टिकुलर कम्युनिटी. ओके, और डिसाइड्स करती है बजट फॉर द स्पेसिफिक एडवर्टीजमेंट कैंपेन के लिए. और it plans the most effective media, print or electronic media, to be used to reach their prospective customers. और क्या करती है, creative team then creates a brand identity or by associating the product with a value, or it choose the most effective messages, slogan and visuals. जो चीज़ें सुनाई दे और दिखाई दे, बहुत ही मोस्ट इफेक्टिव मैसेज वो डालते हैं. किड्स, अडल्ट एंड सीनियर सिटीजन्स नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट टू रिस्पॉन्ड इट. बच्चों के लिए स्पेशल अलग से होते हैं, अडल्ट्स के लिए अलग, और सीनियर सिटीजन्स के को दिखाने के लिए उस ऐड के अंदर बहुत सी चीज़ें डाली जाती हैं ताकि वहाँ पर उनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े. ओके, और डिसाइड्स क्या किया जाता है, हाउ ऑफन द एडवर्टीजमेंट आर टू बी रिपीटेडली और बीइंग simultaneously in both the media as well as print media. Okay, then it tested on the target audience, is found successful, it is released to the public through media. अगर हम बात करें एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग, इट मीन्स कि जो ऐड होते हैं उनके एडवांटेजेस क्या हैं, बेनिफिट क्या है, पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, वो है ये कि एडवर्टाइजिंग हेल्प बोथ द कंज्यूमर एज वेल एज द मैन्युफैक्चरर. जो चीज़ें बनाते हैं उनके लिए भी वो हेल्प करते हैं और जो कंज्यूमर है, जो लेने वाले हैं, उनके लिए भी हेल्प होती है. वो कैसे होती है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हेल्प द मैन्युफैक्चरर ऑफ अ प्रोडक्ट इन मार्केटिंग इट्स प्रोडक्ट, कि वो उसके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करती हैं. मार्केटिंग का मतलब है कि ये प्रोडक्ट किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाना चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल अ न्यू ब्रांड ऑफ कोकोनट water has been introduced in the market, how the manufacturer will announce it to you.
Okay, and it makes the public aware of such brands of products, and it was not through advertisement, where else would a customer search for the desired product. ओके, ये जरूरी नहीं है कि वो कई बार क्या होता है कि हमारी जो नीड होती है, डिज़ायर होती है किसी प्रोडक्ट को लेने की, तो वो वहाँ से भी हमें ऐड के थ्रू भी उन चीज़ों का पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम बात करें, यू आर इंटरेस्टिंग इन बाइंग अ नॉन स्टिक फ्राइंग पैन फॉर योर किचन। सो आप क्या करेंगे, सडनली यू सी एन एडवर्टीजमेंट ऑन अ टीवी फॉर दिस प्रोडक्ट एंड यू डिसाइड टू परचेज द सेम। Okay, and it gives you information on price while sitting at home, watching a TV, or seeing the billboards while driving, or it brings out a competition among various brands of the product. Competition means lower price to the consumer or better service. अब नाउ अगर हम बात करें द डिसएडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग, डिसएडवांटेजेस का मतलब है वो क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं किसी चीज़ को खरीदने के। तो यहाँ पर ऐड के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो क्या है, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स आर वेरी कॉस्टली, ये बहुत ही महंगे होते हैं, एंड बर्डन ऑफ दीज एक्सपेंसेस इज ऑलवेज पास्ड ऑन द कंज्यूमर, और ये कंज्यूमर पर ही इनका ज़्यादा डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। उससे क्या होता है, किसी चीज़ के रेट महंगे हो जाते हैं क्योंकि वो पैसा उनको वहाँ पर ऐड में भी लगाना होता है, तो डेफिनेटली वो चीज़ें क्या है हम लोग भी फेस करते हैं। So people get carried away, that tempted to purchase things. For example, the ads for Fair and Lovely cream का अगर आप देखें तो makes people believe that the moment they start using it, they will become fairer. अगर वो इसको यूज़ करेंगे तो बहुत ही गोरे होते चले जाएंगे। Lured by ads, children compel their parents to buy things which are not even needed. और कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई भी दी जाती है कि जो बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं होती, लेकिन वो पेरेंट्स से जिद करके उन चीज़ों की डिमांड रखते हैं। Okay, and advertisement make people believe that all branded goods are better and they do not mind spending more money on them. And the sales of small local businessmen who cannot afford to advertise suffer even if the product is of good quality. और एक मेन चीज़ है कि अगर कोई जो मीन्स सेल्स ऑफ स्मॉल लोकल बिजनेस, जो छोटे स्तर पर स्केल पर बिजनेसमैन होते हैं, अगर वो इतना अच्छा ऐड नहीं करा पाते हैं तो क्या होता है, उससे उनकी चीज़ें चाहे बेशक गुड क्वालिटी की होती हैं लेकिन वो सफ़र करती हैं, वो चीज़ें इतनी नहीं बिक पाती हैं। सो एडवर्टीजमेंट डू नॉट गिव द डिटेल्स ट्रुथफुली, और कभी भी ऐड जो होते हैं ट्रुथ सच्ची डिटेल नहीं देते हैं, और वे जो नेगेटिव फैक्ट्स होते हैं उनको छिपा देते हैं। समटाइम्स कुछ क्लेम्स जो होते हैं उनके झूठे भी निकलते हैं। ओके, सो इसलिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, वाइल डिवाइजिंग न्यू वेज ऑफ गेटिंग द अटेंशन ऑफ कंज्यूमर्स, द एडवर्टाइजर्स समथिंग हर्ट द फीलिंग्स ऑफ वैल्यूज टू अ सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल. सो एडवर्टाइजमेंट शुड बी सच दैट it does not have any negative impacts on any section of society. Okay, so now this chapter is over. I think you got it. You can read your chapter once again, and in next video we will do the question answer and exercise of this chapter. Okay, so have a nice day. Till then, keep reading.